Good evening, students. We are going to continue today the topic laws of motion, lecture number 9. Let me discuss what might be covered in today's topic. Very first, we have discussed about the momentum. What is the momentum? Momentum is the product of mass and linear momentum. Actually, we are discussing about the linear momentum. Linear momentum, generally denoting with the letter P, is the product of mass and velocity. Momentum is a vector quantity. Momentum क्या होता है आपका? Vector quantity. And then Newton's second laws of motion. Newton's second laws of motion is depends upon the laws of on momentum. It is a rate of change of linear momentum is directly equal to the force, that is F is directly to the rate of change of momentum, that is P2 minus P1 divided by T. This is your Newton's second law. Force formula and derivation. What is the force formula? How to derive the formula? That is F equals to derive the mass into acceleration. ये formula derive करना है आपको. And the proof of first law is by using the second law. That is, the first law is laws of inertia. And when we are saying when the force is zero, in that case acceleration will be also zero. Means when we are not applying the force, the displacement is also zero. Means we are just giving the relation between the first laws and second law. And impulse. Impulse is the product of force and time or change in momentum. P2 minus P1. Impulse क्या होता है आपका? Product of force and time. Now we discuss one by one slowly now. Here the objects given about that, figure given about the momentum. What is momentum? Linear momentum, generally we are denoting with the letter P, is a product of mass and velocity. Okay. Here when we are striking the any object, कोई object को मार रहे हैं अपन, है ना, तो कितने जोर से मार रहे हैं उस पर क्या डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर. सपोज वन ऑब्जेक्ट इज देयर, है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या करे, अपन उसको फेंक रहे हैं, है ना, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करे, अपन ऊपर से रिलीज कर रहे हैं. तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं उसकी हाइट क्या है यहाँ से मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो क्या इंपैक्ट हो रहा देख रहा हूँ, और वही ऑब्जेक्ट सेम मास है उसको मैं और ऊपर से हाइट से रिलीज कर रहा हूँ, तो क्या होगा? देन इंपैक्ट विल बी गोइंग टू डिफर बिकॉज मोमेंटम मास सेम है, but if we are going to change the velocity, then impact is going to change. Or from the same height, if suppose I am using the 1 kilogram object and I am releasing, I am just finding the what is the impact on the sand. तो फिर वही सेम मास में से वही हाइट से मैं क्या कर रहा हूँ, 10 किलो का ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, तो फिर क्या इम्पैक्ट आ रहा हूँ देख रहा हूँ. देन व्हेन द मास विल बी ग्रेटर, देन इम्पैक्ट विल बी ग्रेटर. तो इम्पैक्ट कब ज्यादा आएगा तुम्हारा? दो कंडीशंस पे, व्हेन द वेलोसिटी विल बी ग्रेटर and the mass will be greater. That is, momentum, it depends upon the two factors. The what is the unit of momentum? What is the SI unit of momentum? SI unit of momentum क्या होगा? What is the unit of mass? Unit of velocity meter per second. तो unit क्या होगा momentum का? Unit of momentum is the kilogram meter per second. And dimensions of momentum also you should know about that. M1 L1 T माइनस 1, ये क्या हो गया आपका? डायमेंशन. समझे? हाँ, ये हो गया मोमेंटम के डायमेंशंस. ये बॉल यहाँ पे मारे, जब कैच ले रहा है, जब ऑब्जेक्ट को कैच ले रहा है तो क्या करता है? बॉल ऐसे, तो बॉल को ऐसा नहीं करता है, क्या करता है? बॉल को उसका डायरेक्शन से, बॉल के डायरेक्शन से क्या करता है? उसको मूव करता है. क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू रिड्यूस दैट द मोमेंटम. उसका फोर्स क्या कर रहे हैं अपन? कम कर रहे हैं, है ना. दिस आर द कंडीशंस ऑफ द मोमेंटम. The Newton's second law of statement, क्या न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है? The force is, है ना, अभी फर्स्ट लॉ में क्या देखा अपन ने? To move the objects or to change the state of the object, we require the external unbalanced force. क्या लगता है अपने को? कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना है, उसका शेप चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है. इतना अपन देखा था फर्स्ट लॉ में, बराबर. कितना लगता है ये पता था क्या अपने को? नहीं था. तो कितना लगता है किसने बताया? तुम्हारा न्यूटन के second law में. तो उसने क्या, according to him, what he is saying, the force required to move the objects or whatever the change the objects, to change the state of the object, how much force is required, given the explanation by Newton's second law. According to him, force is directly proportional to the rate of change of linear momentum.
क्या है फोर्स, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर चेंज। का मतलब क्या होता है, चेंज इज नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस ये चेंज है ना। लेट वी कंसीडर P2 इज फाइनल मोमेंटम एंड P1 इज द इनिशियल। तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट F इक्वल्स टू K P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T। K क्या है तुम्हारा, K इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, K की वैल्यू क्या है तुम्हारी, फिक्स होती है। बाय प्रैक्टिकली वी प्रूव दैट वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू 1। प्रैक्टिकली क्या करें, अपने वैल्यू प्रूव कर दिए उसकी, K की वैल्यू कितनी होती है 1। तो फोर्स कितना हो गया आपका, फोर्स इक्वल्स टू K की वैल्यू 1 है, तो नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो क्या होगा तुम्हारा ये P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T, दिस इज योर फोर्स, है ना। फोर्स क्या है तुम्हारा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। तो फोर्स यहाँ पे मास कितना है P2 यानी फाइनल मोमेंटम है, इसका मतलब मास m वेलोसिटी v माइनस मास m वेलोसिटी u एंड टाइम क्या है उसका t। देन इफ यू आर टेकिंग द m कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे v माइनस u डिवाइड बाय t। एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द, then from that equation we will come to know the F equals to mass and acceleration, because you know the value A equals to what, v minus u divided by t according to definition। definition के हिसाब से क्या होता है, acceleration is a rate of change of velocity। समझ में आया क्या, यही क्या है आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ है ना। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, समझे, है ना। फोर्स क्या है तुम्हारा, लीनियर मोमेंटम के चेंज की उतना होता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। देखिए अभी फिर से डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, सेम फार्मूला अभी जो डिराइव किया मैंने वही फार्मूला डिराइव करना है। इस फर्स्ट में खाली उसमें स्टेटमेंट बताना था आपको, स्टेटमेंट आपको पता हो गया अभी, अब इसको डिराइव करना है। तो वही क्या है, अभी फोर्स इज डायरेक्ट दो P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T, दैट इज F इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन निकाल दिए K की वैल्यू कितनी है 1 है, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T, दैट इज F इक्वल्स टू mv माइनस mu डिवाइड बाय T, is F equals to mass common v minus u divided by T, that is F equals to m into a। this is the derivation। जनरली न्यूटन सेकंड लॉ बोलने के बाद बहुत से लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, है ना। ये क्या है न्यूटन का डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला, किस तरह से फॉर्मूला है उसके बारे में बताया यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट्स। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है तुम्हारा इंटरेक्शन होता है ना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन है ना, क्या है तुम्हारा फोर्स। इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फोर्स। इंटरेक्शन कैसा होता है तुम्हारा, इंटरेक्शन इज टू टाइप, वन डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन होता है और अदरवाइज नॉन फिजिकल। जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो कौन सा फोर्स है आपका, वो उसको क्या कहते हैं अपन, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मस्कुलर फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स कॉन्टैक्ट, विस्कस फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या है तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इनडायरेक्ट फोर्स एंड जिसमें जगह डायरेक्ट तुम्हारा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है वो क्या तुम्हारा नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसके बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या करे, काफी दूर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द डिस्टेंस दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट और फ्रॉम द डिस्टेंस दे आर गोइंग टू रिपेल, है ना। जैसे कि क्या है, एप्पल पेड़ पे से एप्पल नीचे आता है ना, कोई तागा नहीं उसको टच करे से क्या नहीं, वो क्या है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट। मैग्नेट दो सेम पोल साउथ साउथ नजदीक नजदीक रखो, एक दूसरे को ढकेलेंगे, वो कॉन्टैक्ट हो रहा है क्या उसका, नहीं, फिर भी क्या करे रिपेल कर रहे हैं। दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। मैग्नेट के आसपास आयरन रखो, दूर से क्या करेगा आयरन ऑब्जेक्ट, उसको मैग्नेट को चिपक जाएगा, फ्रॉम डिस्टेंस इट विल बी गोइंग टू अट्रैक्ट। दिस काइंड ऑफ द फोर्स इज नोन एज द नॉन कॉन्टैक्ट, है ना। तो फोर्स समझ में आ गया। और इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है तुम्हारा फोर्स का, न्यूटन। एम के यूनिट, एम के यूनिट क्या है उसका फोर्स का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफी बुक में ऐसा भी लिखते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड का माइनस मतलब सेम ही है ना। पर सेकंड स्क्वायर लिखो या तो फिर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या है तुम्हारा, वेरी गुड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, और
ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का -2, ऐसा भी लिखते हैं अपन, है ना। तो इसमें क्या रिलेशन क्या है दोनों में, इसमें क्या है, इसको लिखते हैं अपन डाइन, इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना है 10⁵ डाइन। जनरली क्या है, एमके यूनिट इज नोन एज द न्यूटन। एमके यूनिट क्या है, न्यूटन का मतलब क्या है तुम्हारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ही मतलब क्या है न्यूटन है। डाइन का मतलब क्या है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ही मतलब क्या है आपका डाइन है। तो क्या है दोनों में रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, समझे। हाँ 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा 10⁵ डाइन, याद रखना है आपको, है ना। हाउ टू कन्वर्ट, जस्ट द यूनिट्स यू हैव टू रिमेंबर। आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने का, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सिंपल रिलेशन उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना है 1000 ग्राम, है ना। 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर। आप ये यूनिट इसमें डालते हैं, एमके का सीजीएस में करते हो तो आप डायरेक्ट आपको ये रिलेशन मिलेगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, समझे। देखिए तो उसके बाद में देखना है आपको प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉज बाय यूजिंग द सेकंड लॉज, है ना। तो क्या है अभी अपन प्रूफ करें, सेकंड इक्वेशन क्या है तुम्हारा फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर है। यहाँ पे दिखाया अपन फोर्स इक्वल्स टू कितना मास एंड एक्सेलरेशन, ये रिलेशन दिखाया अपन ने। अभी कंडीशन इफ एफ इज 0, एफ 0 तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। इफ एफ इज 0 दैट इज ए इज आल्सो इक्वल्स टू 0, है ना। अब एफ 0 है तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 0 है, या मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास तो 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा ए इज 0, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब क्या है वेलोसिटी में कोई चेंज है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो स्टेट में है वही स्टेट में है, इनर्शिया स्टेट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है ना। जो वेलोसिटी में जो घूम रहा था वही वेलोसिटी में, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी होता है ना। इसका मतलब वही डायरेक्शन में भी घूम रहा है ऑब्जेक्ट। व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स देन ओनली द ऑब्जेक्ट विल बी गोइंग टू चेंज देयर एक्सेलरेशन, समझ में आ गया, है ना। फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉज ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द इनर्शिया, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ द मोशन, जैसे वैसे रहना चाहता है। तो यहाँ पे जो फोर्स और कब मूव होगा तुम्हारा, व्हेन इट विल गोइंग टू चेंज द स्टेट, व्हेन वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जब अनबैलेंस फोर्स लगाते हो जब भी क्या करेगा ऑब्जेक्ट की, क्या करेगा तुम्हारा पोजीशन चेंज करेगा। आप देखो फोर्स तुम्हारा 0 था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है क्या, यहाँ पर नहीं हो रही है, इसका मतलब लॉ तुम्हारा वेरीफाई हो गया, है ना। कुछ तो फोर्स लगाता हो तो मैं तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा, बराबर है कि नहीं। मास फिक्स है सपोज, मास इज नेवर बी गोइंग टू 0, मास कुछ तो भी होगा। व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स देन यू आर फाइंडिंग डेफिनेटली द एक्सेलरेशन, जब डेफिनेटली एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल रहा है इसका मतलब तो क्या है आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जब क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट विल बी ना चेंजिंग देयर स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है फोर्स लगाने के बाद में उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है, समझ में आया क्या। देखिए उसके बाद में इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, impulse is a product of f into t, or you can write change in momentum p2 minus p1, है ना। क्या तुम्हारा impulse है ना, p2 minus p1, और इसको लिखते हैं अपन mv minus mu, ये क्या है तुम्हारे फॉर्मूले तुम्हारे impulse के। if you take m common v minus u, this is also formula of the impulse। impulse क्या है तुम्हारा the impact the is a product of force and टाइम, है ना। फोर्स क्या होता है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना p2, यहाँ पे टी और यहाँ पे टी क्या होगा तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया सिर्फ तुम्हारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बोले तो भी क्या हो गया आपका इम्पल्स ही हो गया, है ना। और मोमेंटम लिखा मैंने p1 mv माइनस mu, m कॉमन निकाल v माइनस u, दिस इज नोन एज द इम्पल्स। यहाँ पे दिखाया देखो फिगर से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे से ऊपर से यहाँ पे फेंट दिख रहा है देखो, है ना। धीरे धीरे क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा नीचे आ रहा है ना, उसका नीचे आ रहा है तो उसका क्या है तुम्हारा इम्पैक्ट उसका बढ़ जा रहा है, टाइम विल इम्पैक्ट विल बी चेंज। अभी आपको शायद आप खेलते होंगे, है ना, क्रिकेट में बोलते टाइमिंग अच्छा होना जरूरी है बोलते। फोर्स के साथ क्या है तुम्हारा टाइमिंग प्रॉपर होगा तो बॉल तुम्हारा बहुत दूर तक जाएगा, फोर्स लगा रहे टाइमिंग प्रॉपर नहीं रहे तो बॉल दूर जाएगा क्या, नहीं, वाई बिकॉज ऑफ द इम्पल्स, है ना। तो इम्पल्स का रिलेशन वहाँ पे है
है ना, आपको नेल खिला भी मारना है तो अपन क्या करते हैं, बोलते हैं ना 100 सोनार के तो एक और क्यों बोलते, उसका इम्पल्स क्या है तुम्हारा अलग है ना, उसका टाइम इम्पैक्ट है। सोनार क्या करता है, धीरे धीरे मारता है, लोहार सबको मारता है ना, उसका टाइम इम्पैक्ट क्या है उसका अलग होता है, डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एज वेल एज टाइम। समझ में आ गया? तो आप ये देखो रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ द इम्पल्स, अभी फिर से रिलेशन निकालना है। रिलेशन इम्पल्स क्या बताया अपन, इम्पल्स इम्पल्स का मतलब क्या देखिए अपन ने, इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, है ना, अकाउंट न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स क्या है तुम्हारा, बोलिए फोर्स क्या है तुम्हारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टी, और इंटू टी करते तो क्या होगा तुम्हारा टाइम, टाइम क्या होगा तुम्हारा कैंसिल, तो इम्पल्स क्या होगा तुम्हारा P2 माइनस P1। P2 क्या लिख सकते हैं अपन, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन ले रहे हैं अपन सपोज, तो क्या आ गया V माइनस U। दिस इज योर द रिलेशन बिटवीन द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है तुम्हारा, चेंज मोमेंटम एंड इम्पल्स। ये क्या है तुम्हारा, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है तुम्हारा, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन, इम्पल्स क्या है तुम्हारा, चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम यानी क्या होगा तुम्हारा इम्पल्स। समझ में आ गया? द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज डिपेंड्स अपॉन द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, है ना, अपन प्रैक्टिकल में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, दो स्प्रिंग थे, तो क्या है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट reaction, that is mathematically if you are going to express F12 equals to F21, but the direction of F21 is a negative। F21 बोलो कोई बुक्स में A भी दिया है, F12 का मतलब क्या है तुम्हारा डायरेक्शन है, फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड एंड फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, that force will be the same but directions are opposite, exactly opposite। इसका मतलब क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कि मुझे अब कोई पेन फेंकना है ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे हाथ को पहले नीचे लेके आना पड़ेगा, है ना, कोई ऑब्जेक्ट बॉल फेंकना है आपको, तो पहले क्या करते हैं, हाथ पीछे लेते हैं ना, आगे ऐसे धकेलते हैं बॉल फेंकने के लिए, हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक्शन लेने के, अभी आपको जंप करना है तो क्या करना पड़ेगा, पीछे से आगे जंप करते हैं ना, तो क्या करते हैं अपन, कोई भी अभी मुझे आगे चलना है तो मैं क्या करता हूँ, जमीन को मैं क्या करता हूँ पीछे पुश करता हूँ, बराबर है, यही क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपन स्प्रिंग का एग्जांपल देखें, याद है शायद आपको, दो स्प्रिंग थे, है ना, अपन दोनों स्प्रिंग को यहाँ से खींचे, है ना, दोनों स्प्रिंग में रीडिंग क्या थी, सेम थी, वही क्या दिखाता है, इसका मतलब दोनों का एक एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, आप एक्शन भी कर रहे हो उस पर रिएक्शन फोर्स भी सेम आ रहा था, है ना, उसका डायरेक्शन भी क्या था अपोजिट, इसका भी 5 न्यूटन था, उसका भी 5 न्यूटन था, इसका भी 10, इसका भी 10, जितना दोनों का वेट क्या हो रहा था तुम्हारा सेम हो रहा था, वही क्या है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझे क्या, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि आप लोग सबसे अच्छा बर्ताव करोगे तो आपसे भी लोग अच्छा बर्ताव करेंगे, आप किसी को मारे तो सामने वाला भी प्यार करेगा, वो भी मारेगा, है ना, इसका मतलब क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो ऑन दैट basis some few questions are there। Which forces, balance or unbalanced force can change the states of body। देखो बैलेंस फोर्स में क्या है तुम्हारा, एफ नेट कितना होता है 0, अनबैलेंस फोर्स में क्या है एफ नेट कितना होता है नॉट इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है अपने को, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या पूछा है उसने, which of the force, balance or unbalanced force can change the state of the body। बॉडी की स्टेट चेंज करना है, मोशन में तो उसे रोकना है, रुका हुआ है तो उसे मूव करना है, तो उसे कौन सा फोर्स लगेगा अपने का, अनबैलेंस फोर्स, बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ इनर्शिया। समझे? नेक्स्ट वन, व्हाट इज मेजर्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडीज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है, वेरी गुड, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। किस पे आएगा तुम्हारा ये, सिर्फ मास, जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा। आपको एग्जांपल देता हूं, छोटा एक बॉल आता है तो आप रोकना इजी है अपने को, एक बड़ा पत्थर आता है, पहाड़ को अपन या जो बड़ा पत्थर आता है उसको रोकना आसान है क्या, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द मास। उसके बाद में देखिए, द मास ऑफ द बॉडी इज क्वाड्रपल। क्वाड्रपल का मतलब क्या है, तुम्हारा मास 4 टाइम बढ़ रहा है,
व्हाट हैपन इज एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी एंड द गिवन फोर्स. तो जो मास हमारा 4 गुना बढ़ रहा है तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा बताना है आपको, है ना. द मास ऑफ द बॉडी इज क्वाड्रपल. फोर्स क्या होता है तुम्हारा, एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बराबर. द मास ऑफ द बॉडी इज क्वाड्रपल एंड व्हाट हैपन टू इट्स एक्सेलरेशन अंडर द गिवन फोर्स. फोर्स उतना ही, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना. तो फर्स्ट केस तुम्हारा ये दिया है. अभी क्या है तुम्हारा, फोर्स उतना ही बोल रहा है, मास कितना हो रहा है आपका 4m. तो ए कितना हो गया, A2 कितना हो गया जब तुम्हारा फोर्स 4F ही रहेगा, है ना. फर्स्ट कंडीशन में क्या है, F इक्वल टू कितना है तुम्हारा ma. नेक्स्ट कंडीशन में मास कितना होगा तुम्हारा 4 गुना हो गया. जब तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा तुम्हारा F डिवाइडेड बाय 4m इक्वल्स टू A2, बराबर है. F क्या है तुम्हारा फिर m इंटू ए, लिखना है तो रिलेशन निकाल सकते हैं. m इंटू ए डिवाइडेड बाय 4m, तो mm कैंसिल, तो A2 कितना आ गया फिर, A2 इक्वल्स टू a बाय 4, बराबर है क्या. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, मास बनने से फिर एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा, इट विल गोइंग टू रिड्यूस. समझे कैसा हो रहा है वो. देखिए द नेक्स्ट वन, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम p of the body of the car of mass is given 300 ग्राम. मास दिया है यहाँ पे, है ना, इज गिवन मास एंड मूविंग विद द स्पीड इज गिवन 18 किलोमीटर पर आवर. स्पीड दिया है, तो मोमेंटम क्या होता है तुम्हारा, इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड यू आर बट गिवन द मास इन अ ग्राम. मास किस में दिया है आपको, ग्राम में दिया है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में. तो क्या करना होगा, 300 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम. और वेलोसिटी क्या आ जाए आपको, किलोमीटर पर आवर. देन इफ यू मल्टीप्लाई बाय 5/18 इट विल बी इन मीटर पर सेकंड. करेक्ट है, 5 × 5 5 2 10. तो कितना आ गया तुम्हारा 3/2 क्या 1.5 है क्या यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो ये आंसर आएगा इसका. समझे, समझ में आया क्या. देखिए तो उसके बाद में देखिए, a force produces an acceleration of 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन कितना दिया आपको, सीजीएस में दिया है, देखो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है ना. जनरली एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हेन इट एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ मास, मास भी कितना दिया है आपको 20 ग्राम, ये भी सीजीएस में दिया है आपको. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो क्या निकालना है आपको, एफ निकालना है ना. और यहाँ पे ऑप्शन में सब तरफ क्या दिया तुम्हारा, असाइनमेंट दिया है, न्यूटन दिया है. देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट फर्स्ट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज वेल एज मास इन अ किलोग्राम. तो एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा 5 डिवाइड बाय 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है क्या, है ना. क्या होता है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, होता है क्या, हाँ. तो वहां से लिख दिया मैंने. तो 1 सेंटीमीटर यानी कितना होगा तुम्हारा मीटर बाय 100. सेंटीमीटर लिखा मैंने मीटर बाय 100, तो 5/100 सेंटीमीटर हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. मास कितना है तुम्हारा 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम. तो 20 ग्राम दिया, तो इसका मतलब कितने किलोग्राम हो गए, बराबर. हाँ, अभी सिंपल मल्टीप्लाई कर दो फिर. फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना दिया है इसका 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 1000. तो ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, 5 टू 10, 10 के साथ एक कैंसिल, तो 1/1000. तो 1/1000 यानी कितना ऊपर क्या होगा 10⁻³ न्यूटन है क्या यहाँ पे, कहिए सो 1 इंटू 10⁻³. समझे क्या, हाँ कैसे आ रहा है 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन. देखिए द नेक्स्ट वन, a force of 20 न्यूटन acts on the body. F कितना दिया है आपको 20 न्यूटन acts on the body of mass is given how much, mass is given 10 kilogram, is found to be double its velocity in 8 सेकंड. तो 8 सेकंड में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डबल हो रही है. टाइम कितना दिया आपको 8 सेकंड. पहले की वेलोसिटी क्या है, सपोज v थी, और इन्हीं बाद में इनिशियल वेलोसिटी सपोज जो भी थी u थी, पर बाद में क्या हो रही है तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u थी, बट फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू डबल यानी 2u आ रही. फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी इन पहले से डबल हो रही है जब टाइम कितना 8 सेकंड. फाउंड दैट इन फाइनल वेलोसिटी इज डबल इन 8 सेकंड, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी. तो u निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको
u। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, 8 सेकंड में क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही है, और फोर्स दिया है। फॉर्मूला क्या है आपका, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया है आपको पता है 10, एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो मास कितना दिया, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया आपको, डबल हो रही है, तो इसका मतलब कितना हो रहा है, तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है आपकी, 2u माइनस यू डिवाइड बाय कितना, टाइम कितना दिया, 8 सेकंड दिया। फोर्स कितना दिया आपका, 20 न्यूटन। तो अभी क्या कर देंगे इसको सिंप्लीफाई, 2 इक्वल्स टू 1, और 2u में से u का बचा कितना, u डिवाइड बाय 8। तो u 8 इधर के बाद क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू कितना है, 16 मीटर पर, है क्या यहाँ पे केजीएस हो, है? तो क्या आएगा आंसर, ये भी सभी बी आएगा अब तक पूरे। हाँ, वैसे याद नहीं रखना है, सभी बी आए बोल के याद रखना है। समझ में आया कैसा आया आंसर? हाँ, उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या है, what is the percentage change in the momentum of the body when its mass and velocity is doubled? कितना परसेंटेज से चेंज हो रहा है बताना है अपने को। पहले का मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम p को क्या है तुम्हारा, मास एंड वेलोसिटी, ये इनिशियल है, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 1। अब कंडीशन नहीं जाएगा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी व्हेन, व्हेन यानी क्या तुम्हारी कंडीशन डाला है यहाँ पे, बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी इज गोइंग टू डबल, मास भी डबल हो गया है आपका, और वेलोसिटी भी क्या हो गया आपकी, डबल हो गई। तो मोमेंटम कितना आ गया आपका, 4p, बराबर। मोमेंटम कितना है तुम्हारा, फाइनल मोमेंटम, ये क्या है इनिशियल था, और ये क्या है तुम्हारा फाइनल मोमेंटम कितना है तुम्हारा, 4 गुना ज्यादा है ना। तो क्या करना है, वो परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालते परसेंटेज, p2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय, बराबर है कि नहीं, 100। तो डिफरेंस से डिवाइड करते हैं उसको अपन 100, तो कितना है फाइनल में, कितना है तुम्हारा 4p माइनस p डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, तो कितना आ गया तुम्हारा, 3 क्या 300 आ रहा है क्या, 3p, तो 3p आ रहा है ना, चेंज तुम्हारा 3p आ रहा है, चेंज 3p आ रहा है, इसका मतलब परसेंटेज कितना बढ़ गया आपका, 300%, है ना। इसका मतलब परसेंटेज कितना आ गया आपका, p निकालना है तो 300, ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे, है ना। तो परसेंटेज कितना गया, चेंज कितना गया तुम्हारा 300 चेंज माइनस इंटू 100, बराबर है, कितना है तुम्हारा 4p माइनस p, कितना आ गया तुम्हारा 3p इंटू 100, तो कितना है चेंज, कितना आएगा आपका 300%, समझे। द नेक्स्ट वन आप देखो, why are the wheels of the vehicles provided with that मडगार्ड, इसके व्हील को मडगार्ड क्यों लगाता है, यहाँ पे दिखा है, बच्चे के आंख में पूरा खिचड़ी उड़ रहा है, इसमें आंसर दिया उसने, है ना। तो मडगार्ड क्यों लगाते हैं, तो क्या भाई जब तुम व्हील घूमेगा, है ना, जब गाड़ी का व्हील घूमेगा तो क्या होगा तुम्हारा, जो मड लगता है वो कैसा घूमता है तुम्हारा, इट विल बी फ्लाई टेंजेंशियल डायरेक्शन, कैसा उड़ेगा मड, कैसा उड़ेगा, इट विल फ्लाई इन टेंजेंशियल डायरेक्शन से जाएगा, है ना, इधर से उड़ेगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आएगा, तो उसके आंख पे पूरा कीचड़ आएगा पूरा, है ना, क्या आज पीछे तुम्हारी साइकिल होंगी तो तुम्हारे आंख पे गिरेगा, है ना, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो मर कैसा जाएगा तुम्हारा, इट विल फ्लाई टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उसको अवॉइड करना है, टू प्रोटेक्ट करना है आपको, है ना। तो मड क्या करना है, तुम्हारे को प्रोटेक्ट करना है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं अपन मड गार्ड लगाते हैं, जो भी तुम्हारा टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स निकल रहा है उस पर रुक के जगह पे ही गिर जाए, है ना। अंडरस्टूड व्हाई वी आर यूजिंग द मड गार्ड, बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग द बाइसिकल्स और एनी व्हीकल्स, हर व्हीकल के पीछे मड गार्ड होता है ना। द मड इज अ फ्लाइंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, मड क्या आएगा तुम्हारा, उड़ के जाएगा ऊपर, तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू प्रोटेक्ट दैट मड वी आर यूजिंग द मड गार्ड, वेरी सिंपल, समझ में आ गया। ये बच्चा दिखाया भी देखो, पूरा इसके आंग पे मड आया देखो, तो इसके मड गार्ड रहता था तो आता था क्या, यहाँ पे मड गार्ड पूरा ब्लॉक करता था, पूरा मड ऊपर आता ही नहीं था, है ना। देखिए नेक्स्ट वन, कार ऑफ मास इज गिवन 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन का मतलब कितना है, मेट्रिक का मतलब कितना होता है 1000, है ना, 1 मेट्रिक का मतलब 1000, कार ऑफ मास इज गिवन 1 मेट्रिक टन, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट कहां से हो रही तुम्हारी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया उसकी, मास कितना दिया उसका 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी गिवन 0, एंड एक्सेलरेट टू स्पीड ऑफ 72, तो इनिशियल वेलोसिटी ये दिया, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया आपकी
72 किलोमीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया आपको 20 सेकंड दिया, बराबर है। एंड देन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 80 सेकंड, टाइम कितना दिया आपको 80 सेकंड, बाद में की बात है। कितना हो गया, देन इतने के बाद में नेक्स्ट कंडीशन है, देन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 80 सेकंड, जो वेलोसिटी चल रहा था वही वेलोसिटी से 80, एंड इट्स ब्रॉट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, फिर बाद में क्या हो रहा है 10 सेकंड के बाद में रुक जा रहा है ना। तो क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार फ्रॉम फर्स्ट टू 20 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आपको क्या हो रहा है? चलो क्वेश्चन समझने के लिए क्या करता, थोड़ा सा मैं क्या करता आपको और थोड़ा इजी करने के लिए थोड़ा डायग्रामेटिकली निकालता। सपोज यहाँ पे क्या करेंगे अपन, टाइम निकालेंगे, क्या टाइम एक्सिस है ना। तो पहले क्या है तुम्हारा स्पीड, क्या है तुम्हारा कार की मास दिया आपको, पहले यहाँ स्टार्ट 0 से स्टार्ट हुआ, तो a car of mass 1 metric ton start from rest and accelerates to speed of 72 किलोमीटर इन 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितना होगा तुम्हारा स्पीड, धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ पे कितना स्पीड है आपकी 72 पे, बराबर है 72 यहाँ पे स्पीड आ गई आपकी कार की। ठीक है, ये चला कब तक, सिलसिला 80 तक, 80 तक ये चला स्पीड, वही गाड़ी से वही स्पीड से गाड़ी तुम्हारी कांस्टेंट चलती लगी, पर स्पीड बढ़ी, फिर बाद में क्या हो गई तुम्हारी गाड़ी सेम स्पीड में चली, फिर क्या हो गया तुम्हारा, एंड इट्स ब्रॉट टू रेस्ट, फिर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा तो सडन रुक रहा है गाड़ी आपकी, नहीं रुकने को भी क्या लग रहा है आपकी टाइम ले रहा है, और नेक्स्ट 10 सेकंड वो तो 90 सेकंड में गाड़ी आपकी रुक गई। समझ में आया कैसा हो गया है तुम्हारा ग्राफ? तो आप क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार फ्रॉम द 0 टू 20 सेकंड। तो फोर्स निकालना है, फोर्स निकालने क्या करना पड़ेगा अपने को, फोर्स निकालने के लिए तुम्हारा सिंपल फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपली एक्सेलरेशन निकालो फर्स्ट कंडीशन में, है ना। तो मास तो दिया है आपको, कितना है मास 1000, एक्सेलरेशन क्या आएगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी माइनस बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी कितना है आपकी 72 किलोमीटर दिया है, देखो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 5/80 से जब मल्टीप्लाई करते 18 3 जा कितना है 18 4 जा, 18 4 जा कितना है 72, तो 4 5 जा 20, तो कितना गया 20 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम कितना था 20 सेकंड, बराबर है। तो 20 के साथ 20 कैंसिल हो गया, तो फोर्स कितना था आपका फर्स्ट कंडीशन में 0 आता क्या साहब, हाँ 20 माइनस 0 इज 20 डिवाइड बाय 20, इट विल बी कैंसिल एंड इट विल बी द 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, इट विल बी द आंसर विल बी द 1000 न्यूटन। ये फर्स्ट आंसर आ गया। फोर्स कितना आ गया आपका फर्स्ट कंडीशन में, फोर्स आ गया आपका 1000 न्यूटन। सेकंड कंडीशन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार फ्रॉम 20 टू, आप बोलो अभी 20 टू 100 सेकंड, है ना। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द कार, देन इट मूव्स कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 80 सेकंड। अच्छा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 80, वो तो यहाँ से 80 सेकंड जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 100 सेकंड जा रहा है। यहाँ से कितना है, ये 80 है, 20 के बाद में 80 जा रहा है, फिर यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 110 आएगा, नेक्स्ट 10 सेकंड बोले तो फिर क्या है, देखो then which moves constant velocity for 80 सेकंड and brought to rest in next 10 सेकंड। तो 80 सेकंड तक यहाँ तक क्या गया तुम्हारा वही स्पीड में गया, तो वो कंडीशन में फोर्स कितना है आपका 20 से लेकर 100 सेकंड में फोर्स कितना है, कितना आएगा फोर्स बोलो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में फोर्स कितना आएगा, वेरी गुड 0 आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में चेंज ही नहीं हो रहा है, velocity remains the same। तो F equals to mass into acceleration, that is m। फाइनल वेलोसिटी भी कितना है तुम्हारा 20, इनिशियल भी कितना है 20, टाइम कितना है कुछ कितना भी तो 80 है ना, कितना 100 है ना, ये 100 माइनस 20 कितना होगा 80, तो कितना 0 डिवाइड बाय एनी टर्म विल बी द 0, तो फोर्स कितना होगा वहां पे 0 न्यूटन। तो यहाँ पे F कितना आ गया आपका सेकंड कंडीशन में 0, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट कंडीशन देखो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्स फ्रॉम 100 टू 100 सेकंड। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, जब क्या हो गई तुम्हारी स्पीड क्या हो रही तुम्हारी कम हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी फाइनल स्पीड कितनी है तुम्हारी डी एक्सेलरेशन हो रहा है वहां पर, फोर्स क्या है थर्ड कंडीशन में क्या आएगा तुम्हारा फॉर्मूला वही है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है उसका एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी क्या है अभी इसकी फाइनल कितना है 0 है, इनिशियल कितना है 20 है, यहाँ पे था ना टाइम कितना है 10 सेकंड, 10 सेकंड में खत्म हो रही है गाड़ी, टाइम कितना है 10 है, तो फिर कितना होगा तुम्हारा ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, माइनस 2000 क्या माइनस 2000 न्यूटन, माइनस 2000
ये आएगा तुम्हारा ये थर्ड कंडीशन में। अब फोर्थ कंडीशन क्या बताया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार्स इन द एंटायर जर्नी। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है क्या कितना क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू नीड टू फाइंड द एरिया, है ना। तो एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल साइड्स कौन सी तुम्हारी, ये देखो ये कितना है, इसका कितना है, ये इतना कितना है 80 है ना, ये 80 और ये कितना है तुम्हारा 110। तो कितना है तुम्हारा एरिया, कितना आएगा तुम्हारा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 80 इंटू 1 110। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 20 किलोमीटर पर सेकंड है, ये तो मीटर पर सेकंड करेंगे, तो कितना है तुम्हारा 20 आ गया ना, तो इंटू कितना हो गया 20, तो ये 20 के साथ ये 20 कैंसिल, तो 80 प्लस कितना 190 क्या 190 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1900 मीटर। ये क्या होगा उसका डिस्टेंस। समझ में आया क्या, डिस्टेंस कैसे निकाले अपन ने, एरिया ऑफ दैट फिगर, तो पूरे फिगर का एरिया निकाल दिया अपन ग्राफ का, है ना। तो क्या मिला आपको डिस्टेंस। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट वाला, तो हाँ समरी। तो क्या पढ़े अपन आज, वी जस्ट डिस्कस टुडे अबाउट दैट फर्स्ट मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देन न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज रिलेशन बिटवीन, हाँ न्यूटन सेकंड लॉ देखे अपन ने, है ना। तो क्या है तुम्हारा है मास एंड द रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ। कब देखे अपन ने, इफ F इक्वल्स टू 0, तो क्या आ रहा है तुम्हारा F इक्वल्स टू 0, तो क्या मास देन A इज आल्सो इक्वल टू 0, दैट इज द रिलेटेड रिलेशन बिटवीन द न्यूटन सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ। और क्या देखे अपन ने, इंपल्स देखे, इंपल्स क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। और उसके बाद में क्या देखे अपन ने, न्यूटन थर्ड लॉ, F12 इक्वल्स टू F21, दैट इज एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन। The action force and reaction force are equal in magnitude but opposite in a direction देखे, है ना। तो आज में इतने देखे, और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल देखे, मोस्टली न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में फॉर्मूला वही था अपना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, F इक्वल्स टू मास एंड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है आपको क्या है, V माइनस यू डिवाइड बाय T, है ना। और इंपॉर्टेंट एक देखे अपन ने, यस यूनिट, यूनिट क्या देखे अपन, फोर्स का यूनिट क्या है तुम्हारा, एसआई यूनिट क्या है न्यूटन, है ना, ये क्या है SI है, और सीजीएस क्या है डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना 10⁻², ये रिलेशन भी देख लिया अपन ने, है ना। और कन्वर्शन क्या था तुम्हारा, 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम से 1000 ग्राम, ये देखे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू कितना 100, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन इतने। और क्या देखे 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर का मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई बाय 5/18, है ना। तो इतने आज अपन रिलेशंस देखे, इसके अलावा कुछ देखेगा आज, इतना सफिशिएंट था। तो आपको होमवर्क दिया है यहाँ पे, सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 10। आपको बुक्स में क्वेश्चंस आपको लगता होगा सर हमको क्यों बोल रही है, हम तो कौन से, हाँ, पर यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, यू हैव टू सॉल्व एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। इसका मतलब उन्होंने क्या चाहते हैं, आपका वर्सेटाइल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका सिलेबस सेम है ना। तो आप उनके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका और थिंकिंग लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करना है। नहीं आए तो मैं हूँ, मुझे पूछो कभी भी, मैं बताऊंगा उसके सोल्यूशन कैसे है, क्या है क्या नहीं, बट यू शुड ट्राई फर्स्ट, ओके। Now by this way we end up the today's sessions. If anyone having the difficulty in today's topic, you ask and clear your doubts. कोई है क्या difficulty आज के टॉपिक में, कोई समझ में आ गया पूरा, all clear, okay, then wind up today's session then, okay, thank you.